ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਥ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੀ 1.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1.1 ਤੇ 1.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਤੇ Q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਹੋਣ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ P/0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਬਰਾਬਰ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 6/7, 3/5, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2/5, 0/1 ਆਦਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ P/Q ਯਾਨੀ ਕਿ P ਤੇ Q ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ Q ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ √5, √7, √3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3.007, ਸੋ ਔਨ 4.00, ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P/Q ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਮੇਯ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਰਿਮੇਯ। ਤੋ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰਿਮੇਯ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ √5 ਇੱਕ ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ √5 ਦਾ ਆਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ √2, √7, √6 ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ √5 ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜੇਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੰਖਿਆ p ਸੰਖਿਆ a ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। यानी कि जेकर अपाज संख्या p संख्या a स्केयर नूं भाग करदी है तां जिहड़ी p संख्या होवेगी ना a नूं भी जरूर ही भाग करेगी। ये आपां इनू याद रखना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा ही इवें हुंदा है कि जेकर कोई अपाज संख्या p संख्या जिहड़ी a स्केयर नूं भाग करदी है यानी कि उहदे वर्ग नूं जेकर भाग करदी पई है तां वो जदों कल्ला होएगा तां उहनूं भी भाग जरूर ही करेगी। सो अगों आपां क्वेश्चन शुरू करदे हां। तां शुरू तो आपां किवें शुरू करांगे, पहलां आपां मान लैंदे हां कि मान लो जिहड़ी √5 है वो की है, एक परिमेय संख्या है। आपां मान लिया है, अज्यूम किया है, तो अपने कोल की होएगा जो परिमेय संख्या होंदी है तो उदों अपने कोल a/b यानी कि p/q की फॉर्म में हुंदा है। इनू आप लिख सकते हैं a/b तो इंप्लाइज तो इनू आप किवें लिख सकते हैं √b = a। इनू आप एक इस तरह लिखने हैं कि ए तो बी जिहड़ा उहदा गुणनखंड की है 1 या फिर आप लिख सकते हैं ए तो बी सह अपाज संख्यावां हन। तो सह अपाज संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने, जदों आपां किसी दा गुणनखंड नूं पता करिए तो उन्हां दा साझा गुणनखंड की आवे, एक ही आवे। जिवें कि अपने कोल की है, जदों आपां लैंदे आ 3 ते 5 लैने ये साझा गुणनखंड सिर्फ एक ही है, यानी कि आप 3 नूं लिखने 1 × 3 ते 5 नूं लिखने 1 × 5। ये की है एक ही को साझा गुणनखंड है। तो एक और एग्जाम्पल लैने यानी कि 13 ते 12 नूं लै लैने 12 का गुणनखंड की होंदे ने 2 × 2 सॉरी 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12 ये अपने को सारे किंदे गुणनखंड ने 12 के गुणनखंड है ने। इन्हों आप 12 नूं आपां इन्नी तरह नाल लिख सकते हैं। तो अपने को 13 का गुणनखंड की है 1 × 13। ये 12 ते 13 विच साझा गुणनखंड सिर्फ एक ही है, इसलिए आप कह सकते हैं एक ही ने सह अपाज संख्यावां ने। तो इत्थे की करांगे आ तुहानूं समझ आ गया होवेगा। नैक्सट स्टैप में आप करांगे दोनों साइड वर्ग करांगे इन्हां दा, एदा वर्ग ते एदा वर्ग। इहदा वर्ग करांगे तो की हो जाएगा, अंडर रूट नाल स्केयर कट हो जाएगा तो b स्केयर रह जाएगा, इत्थे a स्केयर ते अगों की होएगा अपने कोल a स्केयर। इत्थे अपने कोल की आ गया a स्केयर = 5b स्केयर। जो आप इस हिसाब नाल लिखा कि a स्केयर = 5b स्केयर उदों आप लिखने जदों ये दोनों नाल भाग हो सकती है, यानी कि जिहड़ा 5 है a नाल भी भाग होगा तो b नाल भी होगा। ਇਹਦਾ मतलब की है जिहड़ा a स्केयर है वो 5 नाल की है भाजयोग है, भाव कि ए की आप 5 नाल a स्केयर नूं आप 5 नाल भाग कर सकते हैं तो a स्केयर नूं आप b नाल भी कर सकते हैं। तो इत्थे आप की लिख सकते हैं, इत्थे मैं तुहानूं फिर दस देवां कि जिहड़ा a स्केयर है वो 5 नाल डिविजिबल है, यानी कि जो आप a स्केयर एनी नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जिहड़ा a स्केयर है a स्केयर के पहाड़े में 5 जरूर आउंदा होवेगा, ये ते डिविजिबल जरूर होएगा तां ही ये नाल भाग होएगा। तो इत्थे आप की कह सकते हैं a स्केयर 5 का भागयोग है। तो आप लिखती रूप में की लिखांगे जो कि a स्केयर जिहड़ा 5 नाल भाजयोग है, तां a दी जिहड़ी संख्या होवेगी की होएगी 5 नाल ए दे जिहड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि वो भी की है 5 नाल भाजयोग होवेगी। तो अगों आप की करना है, अगों फिर आप मान लेना है
ए नूं आपां मान लेना है 5K, इनू आपां की करना है अज्यूम करना है, यानी कि मान लो। जिहड़ा आपां लिखिआ A इज इक्वल टू 5K, इनू आपां जिहड़ी आपां समीकरण 1 कीती है उहदे विच पुट करांगे तां की आवेगा अपने कोल। A दी जगह ते आ पुट करांगे तां 5K दा स्केयर इज इक्वल टू 5B स्केयर, की आएगा 25K दा स्केयर इज इक्वल टू 5B स्केयर। तो इत्थे की होएगा, आ कट हो जाएगा क्योंकि इधर आके डिवाइड होएगा, तो 5 5 25, तो इत्थे अपने कोल की रह जाएगा 5K स्केयर इज इक्वल टू B स्केयर। ये कंडीशन पहलां दी तरह ही आ गई, यानी कि B स्केयर इज इक्वल टू 5K स्केयर। ये अपने कोल सैकेंड आ गई। जो आप फस्ट तो सैकेंड में देखने आ कि जोड़ा है जदों अपने को A स्केयर इज इक्वल टू 5B स्केयर आया सी, तो उदों की लिखा सी आपां, जो कि 5 नाल 5 जोड़ा A स्केयर है वो कि 5 नाल पाज योग है, तो A की संख्या 5 नाल पाज योग होगी। तो अगों अपने को की आ गया, जो कि B स्केयर 5 नाल पाज योग है, तो B की जिहड़ी संख्या होगी वो भी 5 नाल पाज योग होवेगी। पर यह संभव नहीं हो सकता जदों आप इत्थे कंडीशन कह ही दिता है कि जिहड़ा मतलब कि सह अपाज संख्यावां होनियां चाहिए ने A ते B, यानी कि A ते B विच कुछ एक तो वध जिहड़ा गुणनखंड है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। पर इहदे विच की आ गया, A जिहड़ा 5 नाल भाजयोग हो गया तो B भी 5 नाल भाजयोग हो गया, इहदे विच तां जिहड़ी कंडीशन फेल हो गई। तो इत्थे आपां की कह सकते हैं, पहला आपां की मन्निया सी, मन्निया सी आपां √5 एक प्रमेय संख्या विच जिहड़ा गुणनखंड है वो जिहड़ा अपने कोल A B इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, यानी कि एक गुणनखंड आना चाहिए। पर इहदे विच जिहड़ा 5 है वो A दा भी गुणनखंड है, B दा भी गुणनखंड, इसलिए ये कंडीशन कंट्राडिक्शन कंडीशन आ गई अपने कोल, जो कि संभव नहीं है। यानी कि आपां की कह सकते हैं कि क्योंकि 5 A अते B दा सांझा गुणनखंड है, जो कि संभव नहीं है। तो आप की कह सकते हैं, इसलिए जिहड़ी √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करती हाँ कि ये तुहानूं क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। तो एक और नैक्सट सम के जरिए आप समझने आ कि अपरिमेय संख्या नूं किवें प्रूव करने आ। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल की है, सिद्ध करो कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिवें आप √5 का किया सी उवें ही आप करांगे। तो पहला की मन्नांगे आपां, इहदे विच भी आपां 2 कंडीशन याद रखांगे। जेकर अपाज संख्या P संख्या A स्केयर नूं भाग करदी है तो P संख्या भी A नूं भाग जरूर करेगी। सॉरी इत्थे अपने कोल की है, इत्थे 2 है। पहला आपां उस तरह ही मान लैंदे आ, मान लो 3 + 2 √5 एक की है परिमेय संख्या है। इवें तरह मान के फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो फिर अपने कोल की हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। पहला आप की मनना है, अपने को √5 तो अपरिमेय है ही, पहला आप प्रूव किया है। तो हुण की करना है, 3 + 2 √5 की है अपरिमेय संख्या है। पहला इनू मान लेना परिमेय संख्या है। तो अगे अपने को की होएगा, तो 3 + 2 √5 नूं 2 सह अपाज, इनू आप विच लिख दें अपाज संख्यावां A ते B लई A/B दे रूप विच लिखिया जा सकता है। तो आप की लिखांगे 3 + 2 √5 = 1/2।
2 b इधर की हो गया गुणा ए आप √5 ਨੂੰ एक जगह रख लेने तो इधर आके की हो गया माइनस √5 ਨੂੰ ਇੱਥੇ रखा तो आ गुणा विच ने तो की हो गया इधर डिवाइड विच 1/2 2b तो अगों आप इनू b नू अंदर मल्टीप्लाई कर देवांगे 1/2 इत्थे आ जाएगा 1/b a/b माइनस b नाल b कट्टिया जाएगा तो की रह जाएगा 3 इत्थे अपना वेखने कि आप उपर लिखा है कि a/b की अपने को सहअपाज संख्या की है यानी कि ये की है अपने को प्रमेय संख्या है सहअपाज की है प्रमेय संख्या यानी कि इहदा जिहड़ा गुणनखंड है एक ही है तो -3 है 3 का भी आप एक है अपने को गुणनखंड तो अगों लैने 1/2 1/2 का भी अपने को की है गुणनखंड एक ही है। सो आ सारे अपने को गुणनखंड एक वाली हैगी है तो आप की कह सकते हैं एक ही है प्रमेय पर इधर बराबर विच अपने को की है √5 अप्रमेय संख्या है। इन्हों आप लिखती रूप में इस तरह लिखांगे कि a/b की अपने को एक परिमेय संख्या है ते जिहड़ी √5 ते सॉरी इत्थे अपने को की 1/2 a/b -3 ये सारी अपने को की है परिमेय संख्या है ते √5 अपने को की है अपरिमेय संख्या है जो कि सही नहीं है। तो इत्थे आप की कह सकते हैं इसलिए जिहड़ा √5 है अपने को बराबर विच तां अप्रमेय ते उस तो उल्ट की है प्रमेय संख्या है इसलिए आप की कह सकते हैं आप मन्निया तो की सी 3 + 2 √5 एक प्रमेय संख्या अपनी की मनना गलत हो गया इसलिए आप कह सकते हैं इसलिए 3 + 2 √ जो कि सही है नहीं है क्योंकि इत्थे आप इन्ना लिख देने √5 एक अपरिमेय है इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय जेकर ये परिमेय जिहड़ी हैगी है एक अपरिमेय संख्या है ते अपरिमेय साडे संख्या अपने को क्यों आई है साडे गलत मनन करके ये आपां की गलत मन्निया सीगा अपरिमेय मतलब प्रमेय हैगी है पर अपने को जिहड़ा √5 है उनके मल्टीप्लाई विच जेकर वही अपने को अपरिमेय आ गया तो आ अपने को प्रमेय संख्या किवें हो सकती है तो इसलिए आप की कह सकते हैं 3 + 2 √5 की अपने को अप्रमेय संख्या है। इस तरह ही नैक्सट सम जिहड़े हैगे ने वो भी आप एवें ही करने ने ये अपने को सैकेंड क्वेश्चन सी तो अगों अपने को क्वेश्चन आ गए ने 1/2 √7 √5 5 + 2 सॉरी 6 है इत्थे तो ये सम भी आप एवें करने ने पहला 1/2 नूं आप मान लाँगे 1/2 = a/b तो इनू आप लै लाँगे √2 b/a लिख लाँगे तो इनकी कंट्राडिक्शन बना देवांगे आ भी सेम एज इट इज़ आ भी एवें करना है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन तुहानूं जरूर समझ आए होणगे तो इस तरह की होर नैक्सट क्वेश्चन करने लई साडे चैनल में सबसक्राइब करो। नैक्सट अज मैं तुहानूं 1.3 एक्सरसाइज कराई है कल 1.4 एक्सरसाइज शुरू करवावांगी। सो इस चैनल ते बने रहने लई साडे चैनल में सबसक्राइब करो।